اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو بھی، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا جو مین چینل ہے وائرل نیوز لائیو، 7 دن کے لیے اس کو یوٹیوب نے بند کیا ہے کیونکہ ہم نے کچھ زیادہ ہی سچ بتا دیا تھا، اس لیے اسٹرائک مار دی گئی ہے اور انشاءاللہ وہ منڈے سے شروع ہو جائے گا۔ مگر آپ اس چینل کو بھی، جو ہمارا نیا چینل ہے وائرل نیوز انڈیا، اس چینل کو بھی آپ سبسکرائب کر لیجئے۔ اگر اس کو کچھ گڑبڑ ہوتی ہے تو ہم اس پر اپنی خبریں ڈالیں گے۔ ناظرین، پہلی بڑی اچھی خبر، خوش کر دینے والی خبر جو کل سے آپ دیکھ رہے ہیں، اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ بی جے پی کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ 400 پار کا نعرہ جنتا نے مسترد کر دیا، عوام نے مسترد کر دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ بی جے پی 400 پار کا نعرہ لگا رہی تھی مگر بہومت کے آنکڑے کو بھی پہنچ نہیں پائی ہے۔ بھارتی جنتا پارٹی کو صرف 240 سیٹیں ملی ہے، وہیں پر انڈیا الائنس کو 234 سیٹیں ملی ہے، اور اگر آپ الگ الگ دیکھیں تو کانگریس کو 99، ایسے ہی مہاراشٹر سے تو یوں سمجھیے کہ مہایوتی یعنی بی جے پی پوری طریقے سے صاف ہو گئی ہے۔ بی جے پی کو 48 میں سے مہایوتی کو 18 سیٹیں ملی ہے اور مہا وکاس اگاڑی کو 31 سیٹیں مل رہی ہے، جس میں مہاراشٹر سے بی جے پی پوری طریقے سے صاف ہو گئی ہے۔ اب این ڈی اے یعنی 240 بی جے پی کے اور انیہ جو بی جے پی کے ساتھ دل ہے، وہ ٹوٹل ملا کے 291 سیٹیں این ڈی اے کو مل رہی ہے اور انڈیا اتحاد کو 234 سیٹیں مل رہی ہے۔ ظاہری اعتبار سے تو سرکار این ڈی اے کی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن چمتکار انڈیا کا ہے، چمتکار راہل گاندھی کا ہے۔ بی جے پی کا خواب پوری طریقے سے چکنا چور ہو گیا اور 400 پار کا گھمنڈی نعرہ جنتا نے منہ پر پھینک کر مار دیا، اور جنتا نے یہ بتا دیا کہ مودی جی تمہاری نفرتوں کی راجنیتی ملک کو پسند نہیں ہے۔ بلکہ یہ ایک بڑی خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ خود بنارس سے مودی جی ہارتے ہارتے بچ گئے ہیں۔ پنت پردھان کا چہرہ، انڈیا کا سب سے بڑا نیتا مانے جانے والا چہرہ، صرف 1,52,000 ووٹوں سے ہی جیتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں راہل گاندھی نے 3 سے 4 لاکھ ووٹوں سے جیت حاصل کی ہے۔ یعنی پوری طریقے سے یہ خبر بتا رہی ہے کہ جنتا نے بی جے پی کی نفرتوں والی مندر مسجد والی سیاست کو نکار دیا ہے اور بی جے پی کے خواب کو، مودی جی کے خواب کو چکنا چور کر دیا ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر یہ آ رہی ہے جو ایودھیا سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے کہ ایودھیا میں رام جی بھی بی جے پی سے ناراض ہو گئے اور یوگی اور مودی کو بالکل دھتکار دیا، پھٹکار لگائی کہ تمہاری یہ گھٹیا راجنیتی اور میرے نام پر بھیک مانگنے کی راجنیتی، رام جی نے بھی کہا کہ ہم کو پسند نہیں ہے۔ رام جی کا مندر بنایا، اتنا بھویہ ناٹک کیا، اس کے باوجود بھی ایودھیا میں بی جے پی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔
जिले के फैजाबाद पार्लिमानी हलके से बीजेपी के सीनियर लीडर और मेंबर पार्लियामेंट लल्लू सिंह को समाजवादी पार्टी के इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार, इंडिया अलायंस के उम्मीदवार और एमएलए उद्देश प्रसाद ने 56,000 वोटों से हराया। यानी भगवान राम की नगरी में राम मंदिर की तामीर के बाद हो रहे इलेक्शन में मुल्क दुनिया की करोड़ों राम भक्तों की निगाहें टिकी हुई थी, मगर राम जी ने भी मोदी, योगी और बीजेपी को फटकार लगाई, धुतकार दिया कि तुमने जो राम के नाम पर घटिया राजनीति की और विकास के नाम पर वोट ना मांगते हुए मेरे नाम पर जो तुमने भीख मांगा है, तो फिर राम जी को भी ये अच्छा नहीं लगा। और राम जी को भी ये अच्छा नहीं लगा कि मोदी जी हर वक्त मुसलमानों के खिलाफ बात कर रहे थे, नफरतों की बात कर रहे थे, घटिया हरकतें कर रहे थे। आखिर राम जी ने ऐसी फटकार लगाई कि अपने अयोध्या में भी बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है वाराणसी, बनारस। जी हाँ, मोदी जीते तो है, मगर उनकी जीत को भी हार माना जा रहा है, क्योंकि जीत का मार्जिन काफी कम हो गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट से लगातार तीसरी बार जीत दर्ज करते हुए अपने अपोजिशन कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय को तकरीबन 1.5 लाख वोटों से शिकस्त देकर जीत हासिल की, लेकिन इस बार उनकी जीत का मार्जिन काफी कम हो गया। यानी बनारस वालों ने भी मोदी जी के झूठे जुमलों को पसंद नहीं किया। इलेक्शन कमीशन से मिले हुए आंकड़ों के एतबार से मोदी ने 6,12,970 वोट हासिल करके अजय राय को 1,52,513 वोटों से शिकस्त दिया। राय को 4,60,457 वोट मिले हैं। यानी इस एतबार से मोदी जी जीते नहीं हैं, बल्कि पंत प्रधान का चेहरा और मुल्क का सबसे बड़ा नेता माने जाने वाला नरेंद्र मोदी यूं समझिए कि हार गया है। जो जीत हुई है वो जीत नहीं है, वो एक किस्म की हार ही है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, राहुल गांधी से जब पूछा गया कि इस इलेक्शन का क्या माहौल रहा, तो राहुल गांधी ने साफ तौर से कहा कि जनता ने मोदी और शाह से आजादी हासिल करने का साफ, क्लियर, वाज़ेह पैगाम दे दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि आईन को, संविधान को हमारी जो बचाने की मुहिम थी वो कामयाब रही। राहुल गांधी ने कहा कि इस इलेक्शन में मुल्क के मैंडेट ने वाज़ेह कर दिया है कि वो अब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह को पसंद नहीं करते हैं। राहुल गांधी ने पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही कि यह लड़ाई संविधान को बचाने की थी। उन्हें यह बात तब समझ में आई जब हुकूमत ने कांग्रेस के बैंक अकाउंट सील किए, वजीर आला को जेल में डाल दिया, तब मेरे जहन में यह ख्याल आया, यह वाज़ेह हो गया था कि अब हिंदुस्तान के लोग आईन की हिफाजत के लिए मिलकर लड़ेंगे। और मेरा यह पुख्ता यकीन आज दुरुस्त साबित हो गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कारकुनों और लीडरों ने आईन को बचाने के लिए सबसे बड़ा कदम उठाया। इसके तहत कांग्रेस पार्टी ने इंडिया ग्रुप के लीडरों को साथ लिया और जहां भी इत्तेहाद लड़ा वहां सबने मिलकर इलेक्शन लड़ा और मुल्क को एक नया विजन दिया। मिस्टर गांधी ने कहा कि यह इंतखाबी नतीजा इंडिया अलायंस का आया है और आईन को बचाने की हमारी मुहिम कामयाब रही है। और राहुल गांधी ने, लोग ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने कांग्रेस का किला शान से बरकरार रखने में कामयाबी हासिल की। नाज़रीन, बड़ी अच्छी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुस्लिम लीडरशिप को पूरी तरीके से खत्म करना चाहते थे, मगर नरेंद्र मोदी का ये डरावना, भयानक, गंदा ख्वाब भी जो है पूरा नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूं कि इस इलेक्शन लोकसभा में इकरा हसन समेत 27 मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। और ये बात मैं बड़ी खुशी के साथ कह रहा हूं कि मेरी बिरादरी यानी उलमा बिरादरी, बल्कि नदवी बिरादरी का एक शख्स जिसका नाम है मौलाना मुहिब्बुल्लाह नदवी, ये भी लोकसभा इलेक्शन में इन्होंने भी कामयाबी हासिल की। इकरा हसन, साजिदा अहमद, ईटी मोहम्मद बशीर, यूसुफ पठान क्रिकेटर, असदुद्दीन ओवैसी, इमरान मसूद, रशीद इंजीनियर, रकीबुल हसन, मियां अल्ताफ अहमद, मोहम्मद जावेद और खलीलुर रहमान, इस तरीके से 27 मुस्लिम उम्मीदवार लोकसभा
इलेक्शन में कामयाब हुए हैं। यानी वजीर आजम का नापाक शरारती ख्वाब मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करने का, वो ख्वाब पूरा नहीं हुआ और 27 मुस्लिम उम्मीदवार लोकसभा इलेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुए हैं। नाज़रीन, आसाम से बड़ी खबर आ रही है कि आसाम में हजरत मौलाना बदरुद्दीन अजमल को शिकस्त हुई। कांग्रेस उम्मीदवार ने 8 लाख वोटों के फर्क से हराया है। यानी भारत में शायद रिकॉर्ड बन गया है कि 8 लाख वोटों के फर्क से कांग्रेस के उम्मीदवार ने मौलाना बदरुद्दीन अजमल को शिकस्त दी है। लोकसभा इलेक्शन 2024 के रुझानात में एनडीए को अक्सरियत मिलती नजर आ रही है, लेकिन आसाम की धुबरी लोकसभा सीट पर बड़ा हंगामा हुआ। कांग्रेस उम्मीदवार रकीबुल हसन ने रियासत की धुबरी लोकसभा सीट पर AIUDF के सरबराह बदरुद्दीन अजमल साहब को शिकस्त दी है। कांग्रेस उम्मीदवार ने बदरुद्दीन अजमल को 8 लाख वोटों से शिकस्त दी है। AIUDF के सरबराह बदरुद्दीन अजमल आसाम की धुबरी लोकसभा सीट पर कांग्रेस MLA रकीबुल हसन और आसाम गन्ना परिषद के जबीदुल इस्लाम से मुकाबला कर रहे थे। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में धुबरी सीट पर बदरुद्दीन अजमल साहब और कांग्रेस के अबू ताहिर के दरमियान सख्त मुकाबला था। इस इलेक्शन में बदरुद्दीन साहब ने अबू ताहिर को 2 लाख से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी थी, मगर इस बार बदरुद्दीन अजमल साहब 8 लाख वोटों के फर्क से हारे हैं। नाज़रीन, बड़ी अच्छी खबर आ रही है। जहां बीजेपी की 2 ऐसी जहरीली औरतें जिन्होंने मुल्क में नफरतों का जहर घोला था। एक हैदराबाद में माधवी लता नाम की खबीस औरत जिसने मस्जिद की तरफ हाथ करके तीर चलाया था, और ऐसी महाराष्ट्र की एक खबीस औरत जिसका नाम है नवनीत राणा, जो घमंड में चकनाचूर थी और इसने मेरे गांव रावेर की नागजरी मोहल्ले की मस्जिद की तरफ हाथों से इशारा करके वे तीर चलाया था। तो नवनीत राणा जैसी खबीस औरत, माधवी लता जैसी खबीस औरत जो जहर उगल रही थी और मुल्क में नफरतों का माहौल घोल रही थी, रब्बुल आलमीन ने इन दोनों खबीस औरतों को भी शिकस्त का सामना कराया। नवनीत राणा, माधवी लता और एक वो औरत जो 1 रुपए भी गैस की हंडी पर कांग्रेस के दौर में बढ़ जाता था तो नागिन की तरह रोडों पर थिरकती थी, जिसका नाम है स्मृति ईरानी। इसको भी फैजाबाद, स्मृति ईरानी को भी जबरदस्त शिकस्त हुई है। और मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने तो कमाल कर दिया। उत्तर प्रदेश का माहौल यह रहा कि बीजेपी जहां पर योगी आदित्यनाथ जो सिर्फ नाम बदलने की घटिया और शैतानी राजनीति करते थे, योगी आदित्यनाथ को भी उत्तर प्रदेश के हिंदुओं ने सबक सिखाया और योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी को यूपी में शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। और मैं आपको बता दूं कि जौनपुर सीट से कृपा शंकर सिंह की शर्मनाक हार हुई है। समाजवादी पार्टी के बाबू सिंह कुशवाहा ने भारी वोटों से उनको शिकस्त दी है। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है रियासत महाराष्ट्र को लेकर। जी हां, महाराष्ट्र में 10 साल के बाद फिर जबरदस्त अंदाज में कांग्रेस की वापसी हुई है। महाराष्ट्र में लोकसभा इलेक्शन के नतीजे के ऐलान के बाद उद्धव बाला साहेब ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस पार्टी और उनके वोटर्स में खुशी की लहर दौड़ गई है। महाराष्ट्र में 10 साल बाद कांग्रेस की जबरदस्त वापसी हुई है और इसमें मुस्लिम वोटर्स ने अहम और बड़ा रोल, अहम किरदार निभाया है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से मुंबई की 6 सीटों में उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 4, कांग्रेस और बीजेपी को 1 नशिस्त पर कामयाबी मिली है। मुंबई शिमाली बस्ती से कांग्रेस की गायकवाड़ वर्षा एकनाथ ने कामयाबी हासिल की। इस तरह मुंबई नॉर्थ वेस्ट से अमोल गजानन, मुंबई जुनूबी बस्ती से अनिल यशवंत देसाई, मुंबई जुनूबी से अरविंद गणपत सावंत, मुंबई नॉर्थ ईस्ट से संजय दीना पाटिल ने कामयाबी हासिल की है। यानी यूं समझिए कि महाराष्ट्र में बीजेपी का सफाया हो गया। फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत दादा पवार का घमंड और तकब्बुर भी मिट्टी में मिल गया और अब मेरा महाराष्ट्र नफरतें फैलाने वाली पार्टी से, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ने वाली और मंदिरों मस्जिद की नाम पर घटिया राजनीति करने वाली बीजेपी से मेरा महाराष्ट्र पाको साफ हो गया।
नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है मगरिबी बंगाल से। जी हाँ, मगरिबी बंगाल में ममता दीदी 29 सीटों पर सबकत बनाने में कामयाब हो गई और मगरिबी बंगाल की अब सबसे बड़ी पार्टी बन गई है ममता दीदी की तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस ने न सिर्फ अपना किला बचाने में तृणमूल कांग्रेस कामयाब रही, बल्कि बीजेपी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया दीदी ने। और मैं आपको बताऊं कि दीदी इंडिया इत्तेहाद, इंडिया अलायंस राहुल गांधी के साथ है। अगर ममता दीदी और जनाब पलटू राम, नीतीश कुमार अगर वापस इधर पलट जाते हैं तो फिर इंडिया अलायंस की ही सरकार बनेगी, कांग्रेस की ही और इंडिया इत्तेहाद की ही सरकार बनेगी, क्योंकि ममता दीदी ने बंगाल की आवाम ने मोदी को निकाल कर फेंक दिया और बंगाल से बीजेपी को साफ कर दिया। और खास बात यह है कि एग्जिट पोल, जिनको मैंने कल कहा था कि रखेल पोल, रखेल मीडिया, गोदी मीडिया, एग्जिट पोल ने कितना गलत अंदाज में बताया था। मैंने कल ही कहा था कि ये सब झूठे हैं, मक्कार है, गद्दार है, रखेल है, बिखे हुए है। एग्जिट पोल सब के सब झूठे साबित हुए और 400 पार का सपना दिखाने वाले और मुल्क को गुमराह करने वाली गोदी मीडिया एक मर्तबा फिर बेनकाब हो गई। नाज़रीन, इस वक्त उत्तर प्रदेश के इल्मी तहरीकी शहर देवबंद से बड़ी खबर आ रही है, बल्कि देवबंद शहर जिस वजह से मशहूर है वहां पर है दुनिया का सबसे कदीम और बड़ा इदारा दारुल उलूम देवबंद। जी हां, वहां से खबरें आ रही है कि कुल हिंद राब्ते मदारिस के इजलास में अहम तजावीज मंजूर हुई है। मदारिस इस्लामिया को मिल्लत के लिए मजीद नाफे बनाए जाए, मौलाना मोहम्मद आकिल कासमी का ऐसा बयान आया है। गुज़िश्ता कल कुल हिंद राब्ते मदारिस इस्लामिया अरबिया दारुल उलूम देवबंद मगरिबी यूपी जोन नंबर 3 सहारनपुर और शामली की मजलिस आमिला की एक अहम मीटिंग गुज़िश्ता रोज मारूफ दीनी इदारे जामियतुश शेख हुसैन अहमद अल मदनी देवबंद में हुई, जिसकी सदारत मौलाना मोहम्मद आकिल कासमी ने फरमाई। इस दौरान इदारे के मुतम्मिम मौलाना मुज़म्मिल अली कासमी ने तमाम मेहमानों का पुरजोर खैर मकदम किया और मीटिंग में निज़ाम तालीम, इज्तिमाई इम्तिहानात, आइंदा के लिए एक मजबूत लाए अमल और दरपेश मसाइल पर गौर व फिक्र करके उनके हल के लिए जरूरी इकदाम किए जाने पर तजावीज मंजूर की गई। वैसे मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की नापाक और घटिया सरकार जो मदारिस को सताने का काम कर रही थी, अब वो भी साफ हो गई है। इंशाअल्लाह मदारिस जगमगाएंगे, चमकेंगे, आगे बढ़ेंगे, मुल्क और मानवता की और इल्म दीन की और इस्लाम की खिदमत करेंगे। हर्बल सेहत लाए हैं 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कांटेक्ट। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट। किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट।